Hello, welcome to the student. Today I am going to take your chemistry classes. In chemistry classes, first chapter discuss about the chemical reaction and equation. All of you know action in English literature book. All of you know about the action. All the doing work is known as action. But here is reaction. When we do something, then what will be the happen? That is called reaction. In chemical reaction, the process in which new substance with new properties are formed is called chemical reaction. केमिकल रिएक्शन को अगर हम अपने किचन से स्टार्ट करें, अपने घरों से स्टार्ट करें, तो किसी भी सब्सटेंस को लेते हैं और अगर वो किसी दूसरे चीज़ों में बन जाता है तो कोई नया प्रॉपर्टीज़ के साथ बनता है तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। बैट अगर घरों में हम सब्जियां बनाने जा रहे हैं, सब्जियां हैं, गर्मियां काफ़ी हैं, तो रात की बनाई हुई सब्जियां सुबह दिन में खट्टी हो जाती है, उसका स्मेल अलग सा आने लगता है, उसका कलर भी फेंट अलग सा हो जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं वो सब्जियां वैसे फ्रेश सब्जियों की तरह बनाई हुई तरह नहीं लगती है, तो वो कहला सकती है कि केमिकल रिएक्शन। तो यानी कि द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म इज नॉन एज द केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन होने के लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप कैसे कहोगे कि ये केमिकल ये रिएक्शन है, कोई दूसरा नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए देयर आर द 5 कैरेक्टर्स थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई द रिएक्शन अबाउट दैट इज द केमिकल रिएक्शन। इफ द गैस इज इवॉल्व, either precipitate is formed or color is changed or heat is evolved or heat is taken, और एक और है कि state change, there are the 5 कि both are the same, gas evolved, precipitate form, color change, heat या temperature change, state change, that is the 5 characters through which we can identify the chemical reaction. Suppose that here we take the zinc H2SO4 form the zinc sulfate and hydrogen. Here in it zinc sulfate does not belongs to the property of zinc and sulfate. Okay, here the new substance zinc sulfate and hydrogen is formed. Okay, here gas is formed, so it is known as the chemical reaction. Due to the formation of gas, it is known as the chemical reaction. In this reaction, lead nitrate react with potassium iodide to form the potassium nitrate, which is yellow color precipitate, that and lead iodide, that is called the precipitate reaction. Here a new word is formed, precipitate. Any insoluble substance is formed during the chemical reaction in aqueous solution that is not completely dissolved, that is called the precipitate. This type of reaction is also known as the precipitation reaction. Okay. Now the next here, the copper sulfate react with copper sulfate aqueous solution react with iron, then ferrous sulfate and copper form. Here the color change. In reactant side, the copper sulfate color is blue, react with iron to form a green color, iron sulfate and copper release. Okay, here the colors both here blue to change green color. Now we take the another example, calcium oxide react with water to form calcium hydroxide. Heat, when heat, we take the calcium oxide in any beaker, we add the water in this beaker, then we touch the beaker glasses, we feel the heat, so we can say that the heat is evolved. This type of reaction is called exothermic reaction. Now we take the another example, calcium carbonate. When calcium carbonate is heated, अगर इसको heat करेंगे तो it will be dissociate in calcium oxide and carbon dioxide. तो इसमें हीट को देना पड़ रहा है तब ये रिएक्शन हो रहा है, इसे कहते हैं इंडोथर्मिक. एंड स्टेट चेंज, अगर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या कोई दूसरे है, तो वैसे एग्जांपल को हम कह सकते हैं कि स्टेट चेंज रिएक्शन. इन स्टेट, अगर मैं कैंडल को लेती हूँ, कैंडल यानी कि वैक्स को हीट करते हैं, जलाते हैं, तो ये मॉल्टन कंडीशंस में जो आता है वो आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन. तो ये फिजिकल स्टेट सॉलिड से किसमें चेंज होता है, लिक्विड में, तो दैट इज कॉल्ड द स्टेट चेंज. हियर वी टेक द कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन इज ए सॉलिड एंड ऑक्सीजन गैस. अगर इसको इसमें जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये सॉलिड से किसमें चेंज हो रहा है, गैस में. तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि स्टेट चेंज. अब बात आती है कि जब हम किसी रिएक्शंस को लिखते हैं तो यहाँ पे अब आता है कि कैसे, ये तो मैंने आपको समझा दिया
बात है कि केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द रिएक्शन इन दिस फॉर्म। तो केमिकल रिएक्शन को जो अभी मैं बोली जिंक रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, तो जिंक सल्फेट बनाया हाइड्रोजन, तो हम इसको लिखेंगे कैसे। तो केमिकल इक्वेशन उसी को है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे दिखाएंगे। तो रिप्रेजेंट विथ द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, किसी सिंबल की मदद से, उसके फॉर्मूला की मदद से। किसका सिंबल किसका फॉर्मूला, तो सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस विच इज टेक पार्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जो उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा, उसको किसी सिंबल और फॉर्मूला से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। वंस अगेन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस which is take part in the reaction is called chemical reaction। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इस एरो के बाद इधर लिख रहे कंपोनेंट, अगर जो जो इसमें आ रहा है तो उसको हम बी से प्लस साइन से डिनोट करते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना हमारा प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एरो के राइट साइड में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। एरो के लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑलवेज रिटन ऑन द जो है राइट साइड ऑफ द एरो। तो ये वर्ड में लिखा हुआ, अभी हम इसको रिप्रेजेंट भी नहीं किए कि किस तरह से रिप्रेजेंट। अब मैग्नीशियम का हम सिंबल जानते हैं कि मैग्नीशियम को किसको कैसे शो करते हैं, Mg से। ऑक्सीजन चूंकि गैस है तो गैस बायमोलिकुलर होते हैं, डायएटॉमिक होते हैं, तो उसको O2 से रिप्रेजेंट। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना MgO। अब बात आती है कि यहाँ पे O2 क्यों नहीं लगाएंगे। तो 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़े होंगे वैलेंसी, और वैलेंसी के हिसाब से हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। तो ये हमारा मैग्नीशियम कंपाउंड बन गया। अब है कि इस रिएक्शन को लिखें। अब रिएक्शन में भी हमें दो तरह के हैं, केमिकल इक्वेशन तो हो गया कि कैसे हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। लेकिन अब ये रिएक्शंस को लिखे तो दोनों साइड को हमको देखना है, और इसे देखने के चलते केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरे को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड आर शुड बी इक्वल। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन को हमेशा जब भी लिखना है तो बैलेंस करके ही लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो स्टडीड अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इन द स्टैंडर्ड 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अनुसार कि एटम्स जो है नाइदर भी क्रिएट, एटम्स और कोई भी कंपाउंड नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय एटम, वनली जो है इट विल बी मॉडिफाइड टू अनदर। तो एटम कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता, केवल चेंज हो जाता है। तो अब इसको हमको तो यहाँ पे जिंक प्लस H2SO4 लिख रहे हैं तो बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जिंक एटम कितना, एक, यहाँ भी एक, हाइड्रोजन दो, यहाँ भी दो, सल्फर एक, यहाँ भी सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 4। माने रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ सेम है। टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड, टोटल number of atom on the product side are completely equal, so it is known as the balance equation। Next example, carbon plus oxygen form the carbon dioxide, number of carbon 1 1 or 2 oxygen, here the 2 oxygen, both side the number of carbon और oxygen atoms are the same। ये क्या हो गया आपका जो है बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट बताने जा रही हूँ अनबैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है अनबैलेंस इक्वेशन किसको कहते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। तो नेक्स्ट है such chemical equation in which
दोनों तरफ नंबर ऑफ इक्वेशन बैलेंस नहीं, इसको कहते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है। अब ऐसे में तो ये तो अनबैलेंस इक्वेशन है, अगर इसको बैलेंस करके लिखा जाए तो ये अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस करके लिखने के समय हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड 2। अब यहाँ भी मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन का 2 एटम, यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 एटम। इसको कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। यानी कि हमको अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, तो टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द नंबर ऑफ एटम्स शुड बी बैलेंस्ड ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, अब किसी भी इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हमें कुछ भी नहीं पता चला कि क्या है, तो हाउ कैन मेक इक्वेशन मोर अब हम किसी इक्वेशन को लिखने जाएंगे तो उसको मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, तो मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें कुछ जो है सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, उसके फिजिकल स्टेट को लिखना है। तो सबसे पहला जो है फिजिकल स्टेट, अब इस फिजिकल स्टेट में सॉलिड के लिए एस सिंबल देंगे, लिक्विड के लिए हम अगर वो लिक्विड है तो एल सिंबल देंगे, और गैस के लिए क्या सिंबल देंगे, गैस। अगर वो एक्वस है, वाटर सॉल्युबल है, तो उसके लिए हम सिंबल क्या लिखेंगे, ये हो गया। दूसरा स्टेट है हीट के लिए अगर हीट कर रहे हैं तो ऑन हीटिंग, अगर हीटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम एरो का निशान इस तरह का भी सिंबल कर सकते हैं, या उसके अंदर है तो प्लस जो है हीट भी लिख सकते हैं। और अगर हीट निकल रहा है, इसमें है एब्जॉर्ब करना, अगर उसको बाहर से हीट दे रहे हैं तो उसमें प्लस हीट करेंगे, और अगर हीट निकल रहा है और हीट, अगर वो हीट निकल रहा है तो इधर प्रोडक्ट साइड में क्या करेंगे, माइनस हीट लिखेंगे। माइनस हीट किधर, प्रोडक्ट साइड में। इससे पता चल रहा है कि वहां से हीट प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है, वहां पे निकल रहा है। ये हो गया हीट के लिए। और फिजिकल स्टेट में एक और था, अगर प्रिसिपिटेट है तो उसके बगल में पीपीटी लिख देंगे। गैस के लिए ये भी सिंबल होता है, और गैस के लिए हम एरो ऊपर भी देते हैं, प्रिसिपिटेट के लिए एरो नीचे भी हम शो करते हैं। ये हीट के लिए हो गया। जैसे मैं कोई इक्वेशन लिख रही हूँ, जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको हम क्या करेंगे, हीट, तो ये बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हीट करेंगे तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बना। ये इस रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अगर यहाँ एरो ईट के 2NO, ये क्या बना, गैस। एक गैस वहाँ लिख दिया, अगर इसको नहीं है तो गैस बनना, तो ऐसे भी सिंबल दे तो ये क्या हो जाएगा आपका, गैस के लिए। हीट के लिए भी रिएक्शन अगर हमको शो करना है, तो जैसे हम मीथेन प्लस जो है ऑक्सीजन, इसको रिएक्शन करवाते हैं दोनों, तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो है H2O और प्लस हीट। इसमें चूंकि हीट प्लस में आ रहा है तो ये हीट प्रोडक्ट साइड में लिख रहे प्लस में है, तो इवोल्यूशन ऑफ हीट, ऐसे को कहते हैं एक्सोथर्मिक, यानी हीट इवॉल्व हो रहा है, ऐसा रिएक्शन हीट है। क्योंकि यहाँ पे हीट इसको दे रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, इंडो
थर्मिक निकल रहा है। और भी ऐसे कई रिएक्शन हैं जो कि हम टेम्परेचर वगैरह मेंशन कर सकते हैं। अगर प्रिसिपिटेट को शो करना है तो प्रिसिपिटेट के लिए भी रिएक्शन जैसे कॉपर सल्फेट, यहाँ एक्वस मीडियम है, आयरन के साथ रिएक्शन करवाएं तो बन गया FeSO4 प्लस कॉपर, ये सॉलिड है। यहाँ पे आयरन क्या है, सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट को मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे ये सॉलिड कॉपर निकल रहा है। ये हमारा जो है किसी भी रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए है। अब बात आती है कि रिएक्शन तो हो चुके, रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो ये कितने तरह के टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ये 4 तरह के। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है और पांचवा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये 4 तरह के रिएक्शन है। तो सबसे पहले जो चर्चा करने जा रही हूँ वो कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है कैसे है, A + B क्या हो जाएगा, Ag। कोई भी दो रिएक्टेंट को, दो से ज्यादा रिएक्टेंट को लें लेकिन एक सिंगल ही सब्सटेंस बने तो इसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके डिफाइन को अगर हमको क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के लिए हमको क्या करना है, in combination reaction two or more reacts to form one single substance। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंगल सब्सटेंस बनाएगा तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। अब जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दो सब्सटेंस है कार्बन ऑक्सीजन, ये कंबाइंड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये कंबाइंड होकर के क्या बनाया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन जो है इसमें और एग्जांपल देना चाहते हैं तो ऐसे भी है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये भी बन जाएगा वाटर। नेक्स्ट है दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन in this reaction when a single substance more
substance is called उसे क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कोई भी सिंगल सब्सटेंस जस्ट उल्टा हो जाएगा कि इन दिस रिएक्शन सिंगल सब्सटेंस अगर ए ले रहे हैं तो ये टूट करके ए प्लस बी, या ए लिए हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, तीन सब्सटेंस में टूट जाए, ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल में है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको हीट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जांपल में भी क्या है कैल्शियम कार्बोनेट कैसा सॉलिड सब्सटेंस हीट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बनेगा गैस। कितने सब्सटेंस में टूट गया, दो, ये कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है सॉलिड, तो एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में टूटा, ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब एक सब्सटेंस को जो है दूसरे में तोड़ रहे हैं, तीन, आयरन सल्फेट, ये भी आपका सॉलिड है, तो आयरन सल्फेट को अगर हम तोड़ते हैं तो ये बन जाएगा आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, आयरन का ऑक्साइड और प्लस जो है सल्फर डाइऑक्साइड और गैस। ये किस स्टेट में है, इसका स्टेट को मेंशन कर दें, ये है सॉलिड स्टेट, ये है गैस, ये भी गैस। कितने कंपोनेंट में टूटा, एक दो तीन, तीन कंपोनेंट में टूटे, ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें भी हीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction, in this reaction कोई भी एक एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट का जो उसके कंपाउंड से उस एलिमेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स फ्रॉम दैट्स कंपाउंड, उस कंपाउंड से उस एलिमेंट का पोजीशन उसकी जगह पे आ जाए, वैसे को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में जैसे है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। यहाँ पे जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज को अगर देखा जाए ये कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये सॉलिड है, और ये आपका बन जाता है कॉपर सल्फेट भी कैसा बनेगा एक्वस, और कॉपर जो है वो सॉलिड, ये सॉल्यूशन में चलाएगा और ये सॉलिड स्टेट। अगर जिंक यहाँ पे मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव क्या करेगा, इस कॉपर के रिएक्टिविटी सीरीज में लेस है, इस कॉपर को हटा देगा और उसके पोजीशन पे चला जाएगा और ये बना देगा जिंक सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अगर इसी रिएक्शन को अगर मैं लिख देती कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो क्या होगा, कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, ये इसको हटा सकता है, नो, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि नो रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा, उसके पोजीशन पे चला जाएगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी
दो कंपाउंड है, exchange their ion is called double displacement reaction. जैसे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट, और इसको अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, ये रिएक्शन है। अब सिल्वर नाइट्रेट का कैसा मीडियम है और इसका कैसा, तो दोनों को रिएक्शन होने के लिए क्या मीडियम होना चाहिए, इसका एक्वस, इसका स्टेट क्या है एक्वस। अब ये इसका ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, दोनों पे ये पॉजिटिव सिंगल चार्ज है, इस पे सिंगल माइनस, इस पे सिंगल है। इस पॉजिटिव जो है इस पॉजिटिव को हटा देगा, इस पॉजिटिव के साथ इसका निगेटिव, इस पॉजिटिव के साथ इसका निगेटिव, यानी कंपाउंड बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस जो है NaCl। दोनों एलिमेंट्स में आयन का एक्सचेंज हो गया, सॉरी सिल्वर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट। और ये कैसा है, सिल्वर का क्लोराइड आपका जो है ये प्रिसिपिटेट के रूप में मिलेगा, और सोडियम नाइट्रेट कैसा है, और ये सोडियम का नाइट्रेट जो है आपका एक्वस मीडियम है, और ये प्रिसिपिटेट है सॉलिड स्टेट में प्रिसिपिटेट, और ये एक्वस मीडियम। आयन ये पॉजिटिव के साथ ये निगेटिव, और ये पॉजिटिव के साथ ये निगेटिव, इस तरह से आयन एक दूसरे के साथ है, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव और निगेटिव। आयन एक्सचेंज रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह से मैंने आज आपका 4 कंप्लीट किया है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे फोकस करूँगी। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़े से समझने के लिए इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके, थैंक यू।